Now starting my next topic, that is geometric progression. ये AP के फौरन बाद आता है GP series. A geometric progression GP is a sequence of terms in which each term is obtained from the preceding one by multiplying it with a constant. पहले हम क्या कर रहे थे? In the AP series, we had been adding a constant in every previous term, and we had been getting the next constant, next term. So you had been adding a particular constant for AP series, but for GP series, we'll be multiplying with a constant a previous term and we'll be getting a next term. This constant here in case of GP series is known as common ratio. वहाँ पे था common difference. That was a representation by D for the common difference, and here we'll be using small r for the common ratio. The geometric progression अब आपको समझ में आ गया. How do we get? हर पिछली टर्म को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे and we will be getting the next term. उस next term को फिर उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, we will be getting further next term. Here the common ratio is denoted by r, और ये हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? ई तो हम निकालते थे हर अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करते थे. यहाँ हर अगली टर्म को डिवाइड करेंगे पिछली टर्म पे. ओके, so take adjacent previous term and divide, so you'll be getting the value of the common ratio. Okay, this constant is known as the common ratio. For example, 1, 2, 4, 8 क्या हो रहा है? Every next term is being multiplied with a constant. 1 को 2 से किया 2 आ गया, फिर इसको 2 से किया 8 आ गया, सॉरी 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16. The common ratio is 2. How are you getting? कोई भी टर्म ले लें, उसको उसके पिछली टर्म से डिवाइड कर दें. 8 divided by 4, this is 2. 16 divided by 8 is 2. 4 divided by 2 is 2. But this is the way we calculate the value for the common ratio. We divide any term by its previous term. Divide करना है. 1 by 3, 1 by 12. अब यहाँ पे common ratio क्या करेंगे? 1 by 12 को divide करें 1 by 3 से. तो 1 by 12 divided by 1 by 3. तो ये जो second denominator है, इसको आप जब क्रॉस में डालेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 by 12 मल्टीप्लाइड विद 3 हो जाएगा ना. ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में 1 by 3, 3 ऊपर आ जाएगा. इससे कैंसिल होगा, 1 by 4 आ जाएगा. 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा. कॉमन रेशियो विल बी 1 by 2. This general term in a GP series. A geometric progression can be represented as, देखिए जनरल फॉर्म्स की. फर्स्ट टर्म विल बी ए. अब इसको एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर. इसको फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर. अगेन यू विल मल्टीप्लाई दिस कॉमन रेशियो ए आर क्यूब एंड सो ऑन एंड सो ऑन, where a is the first term and r is the common ratio. The nth term Tn is represented by, आप देखिए ये आपकी 4 टर्म है, मगर पावर क्या है? एक कम है, पावर एक कम हो गई. ये आपकी थर्ड टर्म है, पावर एक कम है, यानी 3 - 1. ये सेकंड टर्म है, यहाँ पे 2 - 1. ये 4 टर्म है, ये 4 - 1 है. तो n टर्म में क्या हो जाएगा? n - 1, राइट? a r power n - 1. This is the formula for finding the nth term in a GP series. अब देखिए sum to n terms का formula भी. The sum of a GP series. Let Sn be the sum of the first n terms of a GP series. Series आपकी है a, आप sum कर रहे हैं ना, a plus second term ar, third term ar square and so on and so forth. The last term will be a r n - 1. ये आपकी nth term है. इसका सम करने का डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिख दिया है, a टाइम्स आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1.
और अगर ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इधर आ जाएगा, आर एन इधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इट मे बी रिटर्न लाइक दिस। बेहतर है आप इसी को यूज करें। फाइन। इस फॉर्म में आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। सम टू इंफिनिटी फॉर्मूलास देखिए, this is the sum to infinity formula, S infinity. When absolute value of R is less than 1, अगर R less than 1 है तो उसकी जितनी पावर हम बढ़ाएंगे वो जीरो को अप्रोच करेगी। सुन लें, देखो 0.5 है ना, तो जब आप उसको स्केयर लेते हैं वो 0.25 हो जाए, छोटी हो गई ना रकम और भी, उसको स्केयर लेंगे और भी छोटी हो जाएगी। तो एक छोटी टर्म की पावर बड़ी करते जाएंगे तो इट विल बी अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये पावर सारी आपकी गायब हो जाएगी। ठीक है, जब इंफिनिटी तक जाएंगे तो दिस, और खास तौर पे जब आर छोटा है, आर बड़ा होगा तो ये पूरी टर्म इंफिनिटी बन जाएगी। बट वंस आर इज लेस देन वन, तो हायर पावर विल बिकम जीरो, इसकी हायर पावर जीरो, या ए इंटू वन ए हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 1 माइनस आर। सो फॉर्मूला विल बी रिड्यूस टू सम टू इंफिनिटी टर्म्स ए अपॉन 1 माइनस आर। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और उसकी कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। यानी 1/3 है, 1/5 है, 1/2 है, 1 से लेस होनी चाहिए। तो दिस सम टू इंफिनिटी टर्म्स इन जीपी सीरीज, सम टू इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। ये बहुत आसान फॉर्मूला हो गया, इससे भी आसान हो गया, ये टर्म गायब हो गई, बाकी जो बच गया दिस इज योर सम टू इंफिनिटी टर्म फॉर्मूला। नाउ सी one of the examples. Find the sixth term and the sum to 8 terms of the GP series. This is a GP series in front of you, 1, 2, 4, 8. First term A is 1, common ratio 2 divided by 1 is 2, या 4 divided by 2 is 2, या 8 divided by 4 is 2, common ratio। n term निकालना है आपको, 8 term निकालना है ना, पहले 6 term मालूम करनी है, find the 6 term। तो Tn का फॉर्मूला है a टाइम्स r की पावर n माइनस 1। a की वैल्यू रखें, a is 1, 1 इंटू r is 2, ये आपकी वैल्यू है, टू n माइनस 1, n कितना है आपका 6 टर्म मालूम करनी है, तो लिख लेंगे 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 विल बिकम 5, 2 पावर 5 इज 32, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो 1 विल ऑटोमेटिकली वैनिश, 2 पावर 5 इज 30। तो इसकी 6 टर्म जो होगी 4 टर्म है, फिर 5 आप खुद भी देखें 16 हो जाएगा, और 6 टर्म क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, नजर आ रहा है ना खुद भी। कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, एक तो डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो 10वीं या 20वीं टर्म पूछ रहे आपसे तो बेटर यूज द फॉर्मूला। T6 is 32 and now you have to find the sum of 8 terms. Now n is 8, a first term is 1, r the common ratio is 2, common ratio 2, पावर हमारी क्या हो जाएगी, n 8 है ना, 2 पावर 8 minus 1 upon 2 minus 1. So multiplying some factor with 1 is meaningless, so just leave it. 2 power 8 minus 1 and 2 minus 1 is division by 1 is also meaningless. Multiplication with 1 is also meaningless. So 2 power 8 minus 1. 8 ऊपर है और फिर minus 1 नीचे है, ये पावर में नहीं है minus 1. This is somewhere in the denominator, नीचे आएगा. 2 power 8 is 256. Then minus 1, that is 255. The sum of 8 terms in this GP series is coming to be 255. Let's see what next question. Another example, and these are very good examples.
I'm giving to you, and question of this type you may face in your quiz, in assignment, in your midterm. So you should be well versed with these type of questions. And I'm again telling you that the book which is there available to you on your LMS, go through this exercise of sequence and series. आप खुद भी कभी बैठ के खोला करें उस बुक को और देखा करें कि उसमें क्या क्या है. तो एपी और जीपी सीरीज की एक्सरसाइजेस हैं बहुत सारी, so many exercises. The type of questions which I'm doing here, उस टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा. बहुत सारे irrelevant भी हैं, you may leave them, but those which are relevant questions you must attempt. Now is next example in front of you on the screen. See, the second term and the fifth terms of a GP series are 6 and 48 respectively. The second term आपकी होगी 6 and the fifth term is 48. Respectively का मतलब होता है बिल तरतीब. Find the GP, यानी इस GP सीरीज को अपना मालूम करना है पहले. जब वो सीरीज आ गई तो फिर then find the sum of the first 10 terms. अब थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को लिटिल बिट एक ट्विस्ट दिया है, उसको जरा सा घुमाया है, so that you could utilize your brain, कॉमन सेंस को यूज करें. अब देखिए कॉमन सेंस क्या डिमांड कर रही है. सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए आर, थर्ड टर्म क्या होती है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होता है ए आर क्यूब, और फिफ्थ टर्म क्या होता है ए आर की पावर 4. ये पता होना चाहिए ना आपको. ओके, द वैल्यू ऑफ द सेकंड टर्म इज 6, ये लिख दिया. दिस इज द सेकंड टर्म, ए आर इक्वल 6. दिस इज द फिफ्थ टर्म, फॉर्मूला इज ए आर पावर 4, its value is 48. Now we have two equations, इनको नंबरिंग कर दें 1 और 2. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, ये 2 वाली ऊपर रख लें और ये 1 वाली नीचे रख लें. On either side you divide. A will be cancelled. Here you will be getting r cube. इसको कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा 8. 6 8 का 48. r cube is 8. 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3. Once powers are same, then bases will be same. ये लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा आपने. अगर बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, अगर पावर्स इक्वल हैं तो बेसिस इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं. Now in this case, both the powers are same. r cube 2 r cube. क्यूब को छोड़ दें, बेसिस को इक्वेट कर दें, तो r is equal to 2. r will be equal to 2. r को अब आपने 2 रखना है. अब आइए a हम मालूम करते हैं. Now we want to see the value of a. From first equation यहाँ पे r की वैल्यू 2 रख दें, ठीक है. From equation number 1 I am putting 2, तो ये 2a बन जाएगा. a into 2 is 6, so value of a will be 2 से डिवाइड कर दें, 6 divided by 2 will be 3. So ऐसे क्वेश्चन में आपको जो काम करना है that you are to first find the values of a and r. पहले r निकाल लें, फिर a निकाल लें. Once you will be having these two terms, तो आप सीरीज बना लेंगे. अब हम कहाँ से शुरू करते हैं? From the first value, which is a. a is now 3, और इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट टर्म विल बी 6, फिर दोबारा कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करें, 6 to the 12, फिर कॉमन रेशियो इस 2, इसको फिर मल्टीप्लाई करें 24, इसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसने कहा था फाइंड द जीपी का सीरीज आ गई आपके पास. आपका इसने इन द नेक्स्ट पार्ट दैट यू फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स. तो सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, Sn a times a power rn minus 1 divided by r minus 1. This is a formula I have already told you.
This is the formula to find the sum of n terms in the GP series. Remember, you are handling the GP series. Insert all the values you know. A is 3, लगा दिया. Common difference is 2, ये आप निकाल चुके हैं. A भी निकाल चुके हैं. बस A और R की वैल्यू पुट करें. N sum of the 10 terms का है उसके. N will be 10. Simplify. 2 power 10 is 1024 minus 1 divided by 2 minus 1 is 1. इसको सिंप्लीफाई किया 1023 and this is 3 multiplied. Your answer sum to 10 terms is 3069. Now I give you a pause. आपको मैं कह रहा हूं क्या पूछिए. I have explained your question very well. Still, if you think some step is not clear to anybody, you can ask me. Any problem to anybody? Yes or no? No? इतनी बड़ी क्लास है, nobody is responding. क्या बात है, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही?